today we will discuss topic limit of a function. Limit of a function means it's near about, just first question is x, limit x tends to 1 and you have to find the limit of x plus 1. You will substitute x as 1, you will get answer 2. This is the formula. This is simply, if it is limit x tends to 2, it is x square minus 4 upon x minus 2. We will do limit x tends to 2, x minus 2, x plus 2 upon x minus 2. This will cancel. We will get limit x tends to 2, x plus 2. This is 2 plus 2 means 4. So in this way we can find the value of some function at some limits. Clear? Next is neighborhood of a point. Let C be any real number. We take a number line and take C be any real number. And we take 2 points A and B. Okay? Such that C lies between A and B. Matlab C is greater than A but less than B. So A is less than C and B is greater than C. Any two numbers. Then this is called open interval A to B. Open interval, we will not include A or not include B. We take point between A and B. All the points between A and B, these points are known as neighborhood of C. What is the size or length of neighborhood? So difference between these two. Okay, we take it as modulus because distance can't be negative, so we take it as modulus. Okay, okay. If we say see any interval, we take 1 to 7, then the length will be 6. Clear? Symmetrical neighborhood of C. Symmetrical neighborhood of C means distance from C to A is same as distance from B to C. These two distances remain same. This distance and this distance. These two distances remain same, then it is known as symmetrical neighborhood of C. If symmetrical neighborhood of C, A to B is known as symmetrical neighborhood of C if distance from between C and A is same as distance between B and C. Distance between A and C is same as distance between B and C. Or in other words, if we take any number delta, okay, we take any number delta, distance, we write it as C minus delta and C plus delta. This will also become, distance between these 2 points is same as distance between these 2 points because this is delta. Delta step हम पीछे आए, delta steps हम आगे गए, तो C से तो दोनों तरफ का distance same रहा, तो this is known as symmetrical difference. And this points, all the points between these two, all the points like C, okay? It is C minus delta, C plus delta. If we take this as, suppose we take this as 1, okay? 3 steps behind, 1 minus 3 minus 2 and 1 plus 3 4. Then these two are on the symmetrical difference. Clear? Just example, take example 7, 5 or 9. Difference between these two is 2 and difference between these two is 2. So these are known as symmetrical. So we can take all the points and all the points mean x. Okay, I can take 5 or 9, I can take it as suppose 6 and 8. Okay, another 5 and 9. And other is we take it as 4 and 10. So these all points are symmetrical difference. So we take all the points x belonging to R such that x minus C is less than delta. So points must be between these two. Okay? It's called delta neighborhood of C. These points are known as delta neighborhood of C and is symmetrical about C. Clear? All these points, if I take the interval, all the points between 6 and 8, these points are known as delta neighborhood of C. Next is left limit. What is left limit? Left limits mean a function f is said to have a left limit L.
as x tends to a minus. If it is as left limit at x tends to a minus means less than a. Okay, and limit of fx is L. This is possible if given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive real number delta depending upon epsilon such that fx minus L is less than epsilon for all the points between x minus a minus delta to a. Okay. Okay. What is this? This means fx and its value is L. Its value is L for all the points. Okay. We take a minus delta. Okay. We take all the points between a minus delta and a. We substitute all the values in fx. Okay. We will get a number L, and difference between these two numbers is less than epsilon, mean difference between these two numbers is very positive small number. Okay. It is very positive number, small positive number. This means कि fx minus L. We take epsilon as 0.000000001, and difference between these two numbers is less than epsilon. So this means near about 0. Difference between these two numbers is 0. If difference between these two numbers is 0, then we will take fx is equal to L. So this is the formula definition. If given epsilon greater than 0, however small, जितना small आप सोच सकते हो उतना small positive number. 0.0000 आप 100 zeros लगा लो, जितना आप सोच सकते हो 1000 zeros लगा लो. तो next is a function f is said to be right limit L, and we write it as x tends to a plus. A plus mean more than a. We will take a plus something. So we will take a plus delta. Okay? The numbers between a and a plus delta. We put all the values here. We get answer L. This answer is possible if given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive real number delta depending upon epsilon such that fx और L के बीच का distance उस epsilon से भी कम होगा, इसीलिए हम कहेंगे कि fx का आंसर कितना L. अब जैसे सपोज हम एक क्वेश्चन करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, और fx हमें दिया है सपोज करो x plus 1. तो अगर मैं इसमें लिमिट फिल करूंगी तो आंसर आएगा 2. ठीक है, अगर मैं fx को x plus 1 ले लूं तो आंसर कितना आएगा 2. तो इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी, fx minus 2 is less than epsilon for all x minus 1 less than that. ये डेफिनेशन. ठीक है, fx minus l is less than epsilon, और अगर राइट हैंडेड है तो 1 से लेके 1 प्लस डेल्टा तक. नेक्स्ट, अब आगे लिमिट. लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड को दोनों को कंबाइन कर दिया हमने. तो दोनों को जब मैंने कंबाइन कर दिया तो a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a, और ये क्या है a से a लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा. इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो a माइनस डेल्टा से कहां तक आ जाएगा, a प्लस डेल्टा तक, क्योंकि पहले हमने लिया a माइनस डेल्टा से a, फिर हमने लिया a से a प्लस डेल्टा, तो मतलब ये सारा हो गया यहाँ तक. तो अब हम लिखेंगे a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा तक, और उस चीज को हम लिखते हैं a मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा. और यही चीज हम अगर लेफ्ट हैंडेड हो, जैसे आपके पास लिमिट आई, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो 1 माइनस डेल्टा से 1 तक, राइट हैंडेड है तो 1 से 1 प्लस डेल्टा तक. और अगर लिमिट दोनों ही है, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड नहीं क्या, उसमें लिमिट कहा है, तो फिर हम लिखेंगे x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा. तो ये आप लिखेंगे. तो ये 3 चीजें याद रखेंगे. लेफ्ट हैंडेड हो तो आप उसके लेफ्ट से उस पॉइंट तक, फिर उस पॉइंट से उससे आगे तक, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1 से डेल्टा. तो ये डेफिनेशन याद रखनी, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये लास्ट डेफिनेशन यूज होगी, ये 2 यूज नहीं होगी. ये आपको एज इट इज एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं. ठीक है.
तो यूज ये वैल्यू। क्लियर? हमें फर्स्ट आर्टिकल में प्रूव करना है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंडेड भी एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंडेड भी एग्जिस्ट करेगी और दोनों इक्वल होंगे। ठीक है? और दूसरा हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंडेड एग्जिस्ट करती है, राइट हैंडेड एग्जिस्ट करती है और दोनों इक्वल है, तो लिमिट गेम है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि फर्स्ट पार्ट लेते हैं, हम सेकंड प्रूव करते हैं, फिर सेकंड लेके हम फर्स्ट प्रूव करते हैं। कहीं भी इफ एंड ओनली इफ लिखा होगा तो आपने दो पार्ट्स में क्वेश्चंस को खत्म कर दिया। क्लियर? अब हम पहले मान लेते हैं लेफ्ट नेसेसिटी पार्ट। लेट लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो कोई ना कोई तो पॉइंट होगा जहां पे ये एग्जिस्ट करेगी, और हम मान लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx की लिमिट कितनी है l। ठीक है? अगर एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंडेड भी कोई ना कोई लिमिट होगी, राइट हैंडेड भी होगी और दोनों इक्वल होती है तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। तो इसका मतलब है गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a positive real number delta depending upon epsilon such that, ये डेफिनेशन आपने लिखनी ही है जब भी लिमिट्स आएगा। fx minus l is less than epsilon for all x minus a is less than delta। अच्छा, इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो fx minus l is less than epsilon for all माइनस डेल्टा से डेल्टा के बीच में ये वेरी करेगा। ठीक है? तो fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। अब मैं इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए तीनों में a ऐड कर दूंगी, तो ये a माइनस डेल्टा हो जाएगा। यहाँ a ऐड करूंगी तो कैंसिल हो जाएगा और ये a प्लस डेल्टा हो जाएगा। ठीक है? अब ये कहां से कहां तक है? a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा सब वैल्यू के लिए। तो a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा सारी वैल्यूज के लिए ये चीज लेस देन एप्सिलॉन है। तो मैं इसका एक पार्ट ले सकती हूँ, तो देयरफॉर fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर a माइनस डेल्टा लेस देन a एंड fx माइनस l is less than epsilon for all a less than x is less than a plus delta। तो ये दोनों के लिए वेरी करेगा। तो ये किसकी डेफिनेशन थी? लेफ्ट हैंडेड की, और ये किसकी थी? राइट हैंडेड की। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx exists and limit x tends to a plus fx exists also limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx is equal to l। तो ये दोनों इक्वल भी है, एग्जिस्ट भी करती है। ये हो गया आपका नेसेसिटी पार्ट। अब हम करेंगे सफिशिएंट पार्ट कि ये दोनों लेके हम इसको प्रूव करेंगे। क्लियर? सफिशिएंट पार्ट हम इन दो लिमिट्स को मान लेंगे, दोनों एग्जिस्ट भी करती हैं, दोनों इक्वल भी। तो फिर let x tends to a minus fx exists and limit x tends to a plus fx exists। तो ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल है। अब हम ये लेंगे। ठीक है? और हम मान लेते हैं कि लेट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, इसका आंसर l है। ठीक है? अगर l है तो फिर वैसे ही डेफिनेशन given epsilon greater than 0 however small there exists। अब मैं there exists को ऐसे लिखूंगी। ठीक है? इतने सिंबल है। और पॉजिटिव रियल नंबर delta 1 depending upon epsilon such that fx minus l is less than epsilon for all a minus delta 1 less than x is less than a। फिर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ये किसके इक्वल l के। फिर वैसे ही गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट डेल्टा 2
डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट fx minus l is less than epsilon for all a less than x less than a plus delta 2. ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए ये a है, ये है a माइनस डेल्टा 1 और इधर है a प्लस डेल्टा 2. अब हमें ये नहीं पता डेल्टा 1 बड़ा है या डेल्टा 2 बड़ा है. ठीक है, अगर सपोज डेल्टा 1 में ले लेती हूँ, a को पहले लेट करते हैं, a को हम ले लेते हैं 20 सपोज, और डेल्टा 1 में ले लेती हूँ 5, तो ये कितना स्टेप पीछे हो गया, ये 15 आ जाएगा. अच्छा, डेल्टा 2 को मैं ले लेती हूँ 6, ठीक है, तो ये हो गया 26. ठीक है, तो ये ज्यादा नियर अबाउट है 5 स्टेप. तो मैं इक्वल करने के लिए इसको भी 5 स्टेप लूंगी, तो मैं कहां तक लूंगी 25 तक, ताकि ये इक्वल हो जाए. अगर सपोज करो ये बड़ा ले लेती हूँ, ये मैं 6 लेती हूँ, तो ये 14 हो जाएगा, और ये 5 लेती हूँ तो ये 25 हो जाएगा. तो इनको करने के लिए इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा, स्मॉलर ये है ना, इस बार 5 स्टेप आ गया, तो मैं इसको 15 तक लूंगी कि 5 स्टेप ही जाए. तो इसका मतलब जब मैं दोबारा चूज कर रही हूँ तो मैं दोनों में से स्मॉलर वन चूज कर रही हूँ. इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, 6 किलोमीटर हो गया सपोज करो, इसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो मैंने इक्वल ही जा सकती हूँ. अब मेरे पास ऑप्शन है एक तरफ 6 किलोमीटर एक तरफ 5, तो मैंने कहा मैंने जाना बराबर ही है, तो मैं अगर 5 एक तरफ जा सकती हूँ तो मैं दूसरी तरफ भी 5 चूज करूंगी, 1 किलोमीटर छोड़ दूंगी, तो मैं मिनिमम वैल्यू यूज करूंगी. अब हम लेंगे डेल्टा मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, तो ये आ जाएगा fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा तक जाएंगे. रेंज हमारी यही रहेगी. इसे हम लिखेंगे fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x माइनस a इज लेस देन डेल्टा. तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l. बाय डेफिनेशन ये लिमिट. सेकेंड आर्टिकल है लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट करती है और फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है. ठीक है, अब हमें प्रूव करना है जो भी वो लिमिट होगी वो यूनिक होगी. अब वो तो लिमिट एक ही होती है, लेकिन उसी चीज को अगर हम प्रूव करना हो तो हम बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करेंगे. तो ऑन कॉन्ट्ररी लेट्स अज्यूम दैट limit x tends to a fx is l and limit x tends to a fx is l dash. ठीक है, और l is not equal to l dash. दो लिमिट्स हैं, एक l है एक l dash है, और दोनों इक्वल नहीं है. अच्छा, अब हम पहले लेते हैं कि अगर लिमिट x tends to a fx l है तो फिर वैसे ही लिखेंगे हम, given epsilon greater than 0 however small there exists a positive integer delta 1 depending upon epsilon such that fx minus l is less than epsilon for x minus a is less than delta 1. फिर सेकेंड है लिमिट x tends to a fx is l dash. फिर वैसे given epsilon greater than 0 however small there exists a positive integer delta 2 depending upon epsilon such that ठीक है fx minus l dash is less than epsilon for every x minus a is less than delta 2. For every thing where x is a minus is less than delta 2. अब पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा था डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से जो भी मिनिमम होगा हम उसे चूज कर लेंगे. तो हम मान लेंगे डेल्टा इज मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. तो फिर fx माइनस a माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, फॉर एवरी x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, और fx माइनस l डैश इज लेस देन एप्सिलॉन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा. तो ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 में से जो भी मिनिमम था हमने डेल्टा ले लिया. यही चीज हमने दोबारा लिखी है, लेकिन इस बार हमने डेल्टा लिखा. अब हमें शो करना है कि l और l डैश दोनों इक्वल है, तो हम l माइनस l डैश का डिफरेंस निकालते हैं.
तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक fx सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक fx ऐड कर देंगे खुद से। अब इसे मैं लिख सकती हूँ l माइनस एफ एक्स एक ब्रैकेट में और fx माइनस एल डैश एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है कि a यहाँ पे a मॉड इज लेस देन और इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड, ठीक है। कि कम ऐड करके मॉड करें या मॉड करके ऐड करें तो ये आंसर हमेशा लेस आएगा या इक्वल आएगा। आप कोई भी नंबर ले उसे फिल करके देखेंगे तो ये हमेशा ट्रू आएगा। तो ये दोनों, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। तो इकट्ठे का मॉड जो है वो सेपरेट के मॉड से हमेशा लेस होता है। तो इस चीज में से अब ये स्टेप इससे लेस है, अब ये इसके इक्वल है तो मैं आगे इक्वल का साइन डाल दूंगी। मैं माइनस कॉमन ले लूँ, एफ एक्स माइनस एल, ठीक है, प्लस एफ एक्स माइनस एल डैश। अब आगे इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगी तो मॉड में से कट जाएगा। एल माइनस एल डैश का मॉड किससे लेस हो गया, एफ एक्स माइनस एल प्लस एफ एक्स माइनस एल डैश। और ये चीज किससे लेस है, एप्सिलॉन से, और ये भी एप्सिलॉन से। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। हियर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 एप्सिलॉन। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से भी छोटा है, क्योंकि कभी हमने कहा था ना इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से भी कम है, तभी ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनका डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होगा। अब यहाँ आ गया 2 एप्सिलॉन। अब इस 2 को कट करने के लिए जितने एप्सिलॉन है हम सब में हाफ लगा देंगे, ठीक है। ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ और ये। तो ये हम पहले डिसाइड नहीं करेंगे, हम देखेंगे कई बार आगे क्वेश्चन में हमें एप्सिलॉन बाय 3 आएगा तो हम सारे एप्सिलॉन में अपॉन 3 लगा देंगे। हमें लास्ट में एप्सिलॉन चाहिए तो जो एक्स्ट्रा होगा वो सब में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन बाय 2 आ गया। तो l माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। तो दिस इंप्लाइज l इज इक्वल टू l डैश, हेंस लिमिट इज यूनिक। तो हमने मान लिया था ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो पहली लिमिट के लिए हमने एप्सिलॉन बाय 2 लिया, दूसरी लिमिट के लिए फिर इन दोनों का जो मिनिमम होगा उसे डेल्टा लेट कर लिया, फिर l माइनस एल डैश लिया, उसमें एक एफ एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट है इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज l, तो हमें शो करना है एफ एक्स बाउंडेड होगा इन रिलेटेड नेबरहुड ऑफ a। रिलेटेड नेबरहुड ऑफ a मीन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l। फिर वैसे डेफिनेशन, therefore by given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive integer delta depending upon epsilon such that fx minus l is less than epsilon for every x minus a is less than delta। अब इसी डिलीटेड नेबरहुड में, इसको हमने चेंज नहीं करना, इसी डिलीटेड नेबरहुड में मुझे इसे बाउंडेड शो करना है। तो अगर लेस देन होता है तो ये फॉर्मूला याद रखेगा कि मॉड ऑफ एक्स अगर a से छोटा है तो उसके नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में ही वेरी करता है, उस वैल्यू के नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में। अब ये पूरा x हो गया और ये हो गया, ये a हो गया, तो ये माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। फॉर एवरी x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। अब l की वैल्यू के लिए मैं l ऐड कर दूंगी एफ एक्स को फाइंड करने के लिए, तीनों में इसमें से कट जाएगा और ये l प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। फॉर एवरी x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। तो एफ एक्स का हमें लोअर बाउंड पता चल गया कि इससे ग्रेटर ही होगा l माइनस एप्सिलॉन। तो इसमें क्या आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स इज बाउंडेड बिलो in deleted neighborhood of a and fx is bounded above, अपर बाउंड्री हमें पता ना
कि इससे नीचे ही होगा इन रिलेटेड नेबरहुड ऑफ ए, तो देयरफॉर fx इज बाउंडेड फंक्शन, जिसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमें पता चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास बाउंडेड फंक्शन इन रिलेटेड नेबरहुड ऑफ ए। Next is Cauchy criterion. Cauchy criterion is limit when limit x tends to a, fx exists finitely. Then given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive real number delta such that fx1 minus fx2 is less than epsilon for all 0 less than xi minus a less than delta where I is 1 and 2. Then what does this mean? This means 0 less than x1 minus a is less than delta and 0 x2 minus a is less than delta. ठीक है, ओके, given that limit x tends to a, fx exists finitely. Let limit x tends to a, fx is L. Therefore, given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive real number delta such that fx1 minus L is less than epsilon for every x1 minus a is less than delta, and this is positive. Also, if I take fx2 point, any point other x1, fx2, then it must be also less than epsilon for every 0 is less than x2 minus a is less than delta. Okay, now we have to prove fx1 minus fx2 is less than delta. So I will take fx1 minus fx2. This I can write it as fx1, L, we will subtract L and add L. I can write it as fx1 minus L plus L minus fx2. Mod of combined terms is less than or equal to fx1 plus L minus fx2. This is equal to fx1 minus L plus fx2 minus L. I take minus common from here. And this will be less than epsilon plus epsilon. But we have to prove that this is less than epsilon. This is 2 epsilon. For cancelling 2, we need here denominator with 2. I will write epsilon by 2 everywhere. Okay. For all 0 less than x1 minus a is less than delta and 0 less than x2 minus a is less than delta. I write it as 0 xi minus a is less than delta where I is 1 and 2. This is equal to epsilon. Therefore, fx1 minus fx2 is less than epsilon for all 0 less than xi minus a is less than delta where I is 1 and 2. This we have to prove. If fx1 minus fx2 less than epsilon, then also limit x tends to a, fx exists. First question है, by using definition show that this limit x tends to minus 1, 2x plus 3 is 1. अब हम ना इसे रफ में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग fx हमारे पास आ जाएगा 2x plus 3, a हो जाएगा -1 और l हो गया 1। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, तो ये आएगा 2x plus 3 -1, ये हो जाएगा 2x plus 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो x plus 1, ये हो गया fx माइनस l। तो डेफिनेशन क्या थी, fx माइनस l is less than epsilon for every x minus a is less than delta। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं फिल करूं तो यहाँ पे मेरे पास इसके अकॉर्डिंग बन रही है x plus 1, वो मेरे पास यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ एक्स्ट्रा कितना है 2, तो वी चूज डेल्टा एज एप्सिलॉन बाय 2।
जितना यहाँ कॉमन होगा एप्सिलॉन के नीचे उतना ही आप लगा देंगे। अगर यहाँ 2 कॉमन है आप अपॉन 2 लगा दो, 3 कॉमन है अपॉन 3 लगा दो, जितना यहाँ कॉमन आएगा आपने अपॉन में लगा दो। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स प्लस 1 इज लेस देन डेल्टा। तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, ए यहाँ ए लिखिएगा, ठीक है, तो एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो जब आपने चूज कर लिया इसको तो ये चीज आप सोचिए ये एप्सिलॉन हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे करें तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो 2 डेल्टा इज एप्सिलॉन, तो ये यही है 2 डेल्टा। ठीक है, तो ये 2 डेल्टा का नाम एप्सिलॉन रख दिया। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी x प्लस 8 इज लेस देन डेल्टा। तो आपने डेल्टा को इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन लिखना है। क्लियर? आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, सेकंड समझोगे तो आपको और इजी लगेगा। ठीक है, तो सॉल्व हम कैसे करेंगे? फिर वैसे एफ एक्स हमें दिया है 11 माइनस 2x, a हमें दिया है 3 और l हमें दिया है 5। पहले हम क्या निकालेंगे? एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू 11 माइनस 2x माइनस 5, ये हो गया 6 माइनस 2x। इसमें से 3 बाहर ले लो, 2 बाहर ले लो, 3 माइनस x। तो या मैं इसको लिख सकती हूँ P2 माइनस एक्स माइनस 3, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे x माइनस 3 लेना पड़ेगा ना x। तो अब मैं लेती हूँ x माइनस a, तो ये हो गया x माइनस 3। ठीक है, अब इस हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए? 2, ये चीज है ना, ये लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए ना हमारे पास, तो हम इसको लेस देन एप्सिलॉन लेंगे। ठीक है, तो फिर हम लिखे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2x माइनस 3 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब हम लेते हैं लेट डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हैव अ स्मॉल 2x माइनस 3 मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन, और ये डेल्टा लेना है तो 2 डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बाय 2। हमें डेल्टा की वैल्यू मिल गई। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a positive integer delta depending upon epsilon such that fx minus l is less than epsilon for every x minus a is less than delta. Therefore limit x tends to a fx is l, so this implies limit x tends to 3 11 minus 2x is 5। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे? इसको इक्वल कर लेंगे। यहाँ लेस देन का साइन नहीं रखेंगे, यहाँ इक्वलिटी का साइन रखेंगे, क्योंकि हमें डेल्टा एप्सिलॉन बाय मतलब इक्वलिटी मिलेगी। इससे हम लिखेंगे हमारे पास एफ एक्स क्या आएगा? 1 माइनस 3x, a आएगा 3 और l आएगा माइनस a। पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? एफ एक्स माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 3x माइनस माइनस a, तो 1 माइनस 3x प्लस a, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3x, तो 3 बाहर ले लेंगे, 3 माइनस x, तो इसे हम लिख देंगे x माइनस 3। ठीक है, तो इसमें से सीधी सीधी आ जाएगी, ये डेल्टा है, पूरा एप्सिलॉन है, तो देयरफॉर वी टेक, सीधा ही लिख देंगे डेल्टा एज एप्सिलॉन बाय 3। ठीक है, आपने जितना कॉमन लिया ना बस वो अपॉन में लगा दो। तो देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल there exists a positive integer delta depending upon epsilon such that fx minus l is less than epsilon for every x minus a is less than delta। तो ये आ जाएगा fx आपके पास क्या है? तो लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 3 1 माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस a। तो बस ये है। आप पिछले क्वेश्चन में भी सीधा ही कर लीजिएगा कि देखिएगा जितना कॉमन है वही एप्सिलॉन के नीचे लगा लीजिए। ठीक है।
में हम fx को लेंगे 2 माइनस 3x, a हो गया 2 और l हो गया 4। फिर वैसे ही fx माइनस l करेंगे 2 माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। fx इज इक्वल टू माइनस 4 है, तो ये माइनस माइनस 4 हो जाएगा। 2 माइनस 3x प्लस 4, 6 माइनस 3x, इसमें से 3 कॉमन ले लें तो 2 माइनस x, तो वो हो गया x माइनस 2। अब कॉमन कितना आया हमारे पास 3, तो डेल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन बाय 3। लेट तो फिर वैसे ही गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल there exists a positive integer delta depending upon epsilon such that fx minus l is less than epsilon for every x minus a is less than delta. So therefore limit x tends to a, fx किसके इक्वल आ गया l के, तो अब हम इनकी वैल्यूज डाल देंगे। a की वैल्यू 2 है, फिर 2 माइनस 3x है और l की वैल्यू माइनस 4 है। ये हमें शो कर, ये भी कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ fx बदलेगा। सेम वैसे ही करेंगे। लेट कर लेंगे हम fx की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, a की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है 2। सेम वैसे ही fx माइनस l निकालेंगे। fx है x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1 माइनस 2, तो इसकी मैं फैक्टर्स बना सकती हूँ x माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2, ये कट गया x प्लस 1 माइनस 2, तो ये आ गया x माइनस 1। तो ये तो लिमिट सेम आ गई ना, तो इसमें हम टेकिंग लेंगे, टेकिंग डेल्टा इज सेम एज एप्सिलॉन, देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट fx minus l is less than epsilon for every x minus a is less than delta. तो लिमिट x टेंड्स टू a, fx की वैल्यू l आ गई, तो सेम वही लिख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर? सेकेंड पार्ट सेम है, सिर्फ fx चेंज है। वैसे ही हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाए, फिर कटिंग की, fx माइनस 2 आ गया, सेम इसी पैटर्न से। तो अब आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। आपने पहले fx माइनस l की वैल्यू निकालनी है, जितनी वैल्यू, अब इसमें देखेंगे ना, ये x माइनस a है, इसमें कितना गैप है, कोई गैप नहीं है, तो हमने एप्सिलॉन ले लिया। अगर हम यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा, यहाँ 3 कॉमन लेते हैं तो एप्सिलॉन बाय 3 आ जाएगा। सपोज करो हम 3 बाय 2 लेते हैं तो 2 बाय 3 आ जाएगा, जितना यहाँ लेंगे उसका रेसिप्रोकल यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस इतना सा आपने ये स्टेप लिखना है, ये डेफिनेशन सेम रहेगी, ये सेम रहेगी और ये चीज आपकी सेम आ जाएगी। क्लियर? तो मेन आपका काम है ये वैल्यू निकालना। अब ये थोड़ा सा चेंज आ गया कि जब रैशनल लेंगे तो x लेना है, जब इररेशनल लेंगे तो fx को माइनस x लेना है। fx चेंज होगा, ठीक है, लिमिट l ही रहेगी और a भी l 0 होगा और a भी 0 होगा। तो इसमें हम दो केस, l जो है वो 0 है और a जो है वो भी 0 है, तो केस 2 ले, दो केसेस हो गए व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल। तो fx हमारे पास क्या है, x के इक्वल है। अब सेम हम लेंगे fx माइनस l, वो आ जाएगा x माइनस 0 दैट इज x, ठीक है। और यही हमारे पास लिमिट में बना, इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस 0। वापिस वही चीज अगर मैं लिखूं तो ये x माइनस 0 ये हो गया हमारे पास, लिमिट सेम आ गई। और अगर मैं यहाँ एप्सिलॉन चूज करती हूँ तो डेल्टा और एप्सिलॉन सेम आ जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग डेल्टा एज एप्सिलॉन, ठीक है। फिर व्हेन x बिलोंग्स टू इररेशनल, रियल माइनस रैशनल, तो fx है मेरे पास माइनस x, तो फिर मॉड fx माइनस l किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस x माइनस 0 माइनस x, उसे हम फिर से x लिख सकते हैं, तो वो आ गया x माइनस 0। तो उस केस में भी ये डेल्टा है, तो मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया, उसमें भी मैंने डेल्टा एज एप्सिलॉन ले लिया, दोनों केसेस में सेम आया। तो फिर हम कंबाइन करके एक ही डेफिनेशन लिख देंगे, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल
there exists a positive integer delta depending upon epsilon such that fx minus L is less than epsilon for every x minus a is less than delta. तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू L. तो लिमिट x टेंड्स टू 0. अब हम fx को fx ही रहने देंगे, हम इसमें वो लिमिट नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि दो ऑप्शन है, तो हम दोनों में से कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम सिंपली इसको fx ही रहने देंगे. अब इसमें फंक्शंस फिक्स्ड आ गए, एक 0 फिक्स है और एक 1 फिक्स है. हमें शो करना है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है. इसके लिए हम कॉशी क्राइटेरिया फॉर्मूला लेंगे. ठीक है, उसमें हम पहले क्या करेंगे, हमें जब रैशनल नंबर्स है तो x 0, इररेशनल है तो x 0 है, और जब रैशनल है तो x क्या है, 1 है, fx 1 है. ठीक है, तो पहले हम लेंगे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल. तो हम ये चूज करेंगे. क्लियर? फिर हम लेंगे कि 2 पॉइंट्स ले लेंगे. टेकिंग, अब हम 2 पॉइंट्स लेंगे, एक x1 एंड x2 सच दैट x1 इज इररेशनल ले लेते हैं एंड x2 इज रैशनल ले लेते हैं. 2 अलग अलग पॉइंट्स ले लेते हैं. ठीक है, अब fx1 क्या होगा, जब इररेशनल है तो आंसर 0 है, और जब रैशनल है तो आंसर 1 है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास, हम इसमें कॉशी क्राइटेरिया यूज करेंगे. ठीक है, कॉशी क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें लें तो x1 माइनस सी वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, और x2 माइनस सी वो भी लेस देन डेल्टा. सॉरी, डेल्टा ले लेंगे, दोनों डेल्टा से छोटे होंगे. दोनों का जो डिफरेंस है एट पॉइंट सी तक, वो दोनों लेस देन डेल्टा होगा. तो fx1 माइनस fx2 की वैल्यू लेते हैं, तो ये आया 0 माइनस 1 माइनस 1 नॉट, ये तो 1 आ गया. तो इसका आंसर 1 आ गया, दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन. जबकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कॉशी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया. देयरफॉर लिमिट, देयरफॉर बाय कॉशी criterion, limit of x tends to c fx does not exist. अगर ये एप्सिलॉन से कम आती तो एग्जिस्ट करती, एप्सिलॉन से ग्रेटर है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि एप्सिलॉन हम वेरी वेरी स्मॉल नंबर लेते हैं, पॉजिटिव स्मॉल नंबर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx हमें दिया है, 2 ऑप्शंस है और इस बार लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. तो आपने क्या करना, आप रफली कर सकते हो, 0.25 दोनों जगह करो, देखो आंसर सेम आता है. 2 प्लस 0.25 2.25 हो जाएगा, और 2.5 में से 0.25 माइनस करेंगे तो भी 2.25 आएगा, यानी कि दोनों केसेस में सेम आंसर आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी. तो इसमें हम वैसे लेंगे, fx को हम पहले डिसाइड नहीं करेंगे, हम l को डिसाइड कर लेंगे. लेट l है हमारे पास 2.25 और a है 0.25. fx की 2 ऑप्शंस है. व्हेन x इज रैशनल, तो fx है हमारे पास 2 प्लस x, फिर हम लेंगे fx माइनस l. ठीक है, ये आ जाएगा. fx क्या है हमारे पास इन केस ऑफ रैशनल, 2 प्लस x माइनस l कितना है, 0.25. तो ये आ जाएगा x. ठीक है, यहाँ हम ले लें इसको, तो L कितना है, 2.25. सॉरी, L इज 2.25. तो ये आएगा x माइनस 0.25. ठीक है, तो ये वही चीज नहीं आ गई, x माइनस डेल्टा ही आ गया ना. तो इस केस में हम लेट करेंगे डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वल. फिर व्हेन fx इज इररेशनल, फिर हम उस केस में fx कितना है, 2.5 माइनस x. फिर हम लेंगे fx माइनस l, यानी कि 2.5 माइनस x माइनस 2.25. ठीक है, इसे हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 माइनस x, तो माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस 0.25 आ गया. तो ये फिर
डेल्टा सेम हो गया, तो डेल्टा को भी हम दोबारा क्या लेंगे, एप्सिलॉन। दोनों केसेस में सेम आ रहा है, अगर दोनों केसेस में सेम डेल्टा नहीं बने तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देयरफॉर फिर डेफिनेशन लिखेंगे, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर delta depending upon epsilon such that fx minus L is less than epsilon for every x minus a is less than delta. So limit x tends to a, fx is equal to L. So this implies limit x tends to 0.25, fx is 2.25. Yes. 7th क्वेश्चन है, fx हमें गिवन है, when x is positive it is x, when x is negative it is 1, और gx when x is positive it is 1 and when x is negative it is 0. फर्स्टली हमें प्रूव करना है कि fx की लिमिट अकेले की अगर हम डिस्कस करें एग्जिस्ट नहीं करती, gx की एग्जिस्ट नहीं करती, f प्लस gx और f इंटू gx ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हमने पहले भी 5th क्वेश्चन में कर रखा है, तो वही हम करेंगे। fx हमें गिवन है x when x is greater than equal to 0 और 1 when x is less than 0. इसमें हम दो पॉइंट्स ले लेंगे। लेट x1 इज पॉजिटिव नंबर, तो fx1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज सॉरी दिस इज 0, fx1 विल बी 0, ठीक है। और हम x2 ले लेते हैं लेस देन 0, तो fx2 क्या हो जाएगा 1। अब हम इस पे यूज करेंगे कॉशी क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब हम लेंगे टेकिंग, ठीक है, 0x माइनस 0 लेस देन डेल्टा 1 एंड 0 x1 माइनस 0 एंड x2 माइनस 0 दोनों डेल्टा से छोटे हैं। डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी मत लो, आप डेल्टा ही ले लो, ठीक है। दोनों जो लिमिट्स के पॉइंट्स हैं वो डेल्टा से छोटे हैं। अब बाय यूजिंग, यहां पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, fx1 माइनस fx2। अगर ये एप्सिलॉन से कम आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर ग्रेटर देन एप्सिलॉन आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 और 1, और ये क्या आ गया, एप्सिलॉन से ग्रेटर। देयरफॉर बाय कॉशी क्राइटेरिया लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम gx का फाइंड कर लेंगे, तो gx है हमारे पास 1 when x is positive and 0 when x is negative। अब हम एक पॉइंट ले लेंगे x1 जो पॉजिटिव है, तो gx1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और x2 जिसे हम नेगेटिव डिसाइड करेंगे, ठीक है, तो gx2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और हम इस तरह से लेंगे कि टेकिंग x1 माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा और x2 माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, तो फिर से हम gx1 माइनस gx2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगी 1 माइनस 0 1 दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। देयरफॉर बाय कॉशी क्राइटेरियन limit x tends to 0 gx does not exist, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, कमलारी होली ये when x is positive तो fx क्या है हमारे पास 0 और gx है हमारे पास 1, तो f प्लस g ऑफ x क्या हो जाएगा, fx प्लस gx दैट इज 0 प्लस 1 व्हेन x इज नेगेटिव, तो fx की वैल्यू है 1 और gx की वैल्यू है 0, तो f प्लस g ऑफ x हो जाएगा fx प्लस gx और वो हो जाएगा 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो दोनों केसेस में हमारे पास 1 ही आंसर आ रहा है, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f प्लस g ऑफ x इज 1। फोर्थ पार्ट में क्या है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है,
फिर सेम वैसे लिखेंगे, व्हेन x इज पॉजिटिव fx इज 0 एंड gx इज 1, f इंटू g ऑफ x दैट इज fx इंटू gx, 0 इंटू 1 0. फिर व्हेन x इज नेगेटिव fx इज 1, gx इज 0, f इंटू g ऑफ x is fx into gx that is 1 into 0 0. दोनों केसेस में 0 आ गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f into g of x is 0. तो ये आंसर 0. Next step, prove that limit x tends to c plus 1 upon x minus c does not exist. does not exist तो हम कॉशी क्राइटेरिया ही यूज करेंगे, पर इसमें कंडीशन दी है c प्लस. ठीक है, x टेंड्स टू c प्लस, तो इसका मतलब है हमारे पास जो इंटरवल होगा वो c से c प्लस डेल्टा तक होगा. अब इसमें से हम दो x की वैल्यूज लेंगे. ठीक है, वही दो वैल्यूज हम इसमें काउंट करेंगे. ठीक है, तो अब हमारे पास इंटरवल हो गया, वी टेक इंटरवल c टू c प्लस डेल्टा. इसके बीच में हम कोई दो वैल्यूज चूज करेंगे. ठीक है, वी चूज, पहले तो हम यही चूज करते हैं कि जो एप्सिलॉन है वो 1 से लेस है, और बाद में नंबर जो कॉची क्राइटेरिया से 1 से ग्रेटर आ जाएगा तो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि हमने डेल्टा तो पॉजिटिव लेना ही लेना है. अब यहां से ये अपॉन में है. ठीक है, तो हम इसमें चूज करेंगे एक ऐसा नंबर जैसे 1/n, वो डेल्टा से कम है, और उसी को थोड़ा बढ़ा देंगे 1/2n, वो भी डेल्टा. अब हमने दो वैल्यूज डिसाइड की जो डेल्टा से कम है, तो अब हमें x1 भी यहीं से लेना है और x2 भी यहीं से लेना है, दो वैल्यूज लेनी है. ठीक है, तो x1 हमारे पास हो जाएगा c प्लस 1/n और x2 हो जाएगा c प्लस 1/2n, जिसमें से x1 और x2 दोनों किस इंटरवल में से है, c से c प्लस डेल्टा में से. क्लियर? तो ये हमने कौन से इंटरवल में ली, c से c प्लस डेल्टा में. तो इसलिए अब हम लेंगे fx1 माइनस fx2. ठीक है, और fx हमारे पास क्या, पहले हम fx लिख लेते हैं. fx है हमारे पास 1 अपॉन x माइनस c. ठीक है, तो fx1 हम सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं. c प्लस 1/n माइनस c कैंसल 1 अपॉन 1/n, तो ये n हो जाएगा. ठीक है, और fx2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन c प्लस 2n माइनस c, ये 1 अपॉन 2n हो जाएगा, जिसको हम ट्वाइस n करेंगे. ठीक है, और n यहाँ पे हम कंडीशन रखेंगे कि n ग्रेटर देन 1 है, तभी 1/n लेस देन 1 होगा ना, क्योंकि अगर n लेस देन 1 है तो फिर टर्म पूरी ग्रेटर हो जाएगी. तो हम इसको यहाँ पे चूज करेंगे कि n ग्रेटर देन 1 है. अब हम लेते हैं fx1 माइनस fx2, तो वो आ गई n माइनस ट्वाइस n माइनस n, यानी कि n. ठीक है, अब n क्या था, ग्रेटर देन 1, यानी कि ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो गया, बिकॉज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन. तो देयरफॉर लिमिट बाय कॉची क्राइटेरिया लिमिट x टेंड्स टू c प्लस 1 अपॉन x माइनस c डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है सेम पिछले 8 क्वेश्चन की तरह कि हमें शो करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट. डज नॉट एग्जिस्ट है तो कॉची क्राइटेरिया यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमें fx दिया है 0, fx है 1/x और हमें 0 पे चेक करना है, तो ये 0 हो गया और हम ये 0 प्लस डेल्टा ले लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा. ठीक है, तो टेकिंग 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन 1, एप्सिलॉन 1 से कम होगा. ठीक है, वी चूज 1/n. ठीक है, दो नंबर्स हम चूज करेंगे, एक हम करेंगे 1/n क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो दैट इज लेस देन डेल्टा, और 1/2n दैट इज लेस देन डेल्टा सच दैट n इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, अब x1 डिसाइड करेंगे, x1 इसमें से लेना है. ठीक है, तो 0 प्लस 1/n दैट इज 1/n, और x2 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2n दैट इज 1/2n, क्योंकि हमने इनमें से डिसाइड करना है.
x1 और x2, तो वो जो भी होगा 0 प्लस करके होगा, ठीक है। इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, 0 प्लस। अब fx1 माइनस fx2 करेंगे, तो fx1 माइनस fx2 1/1/n माइनस 1/1/2n, तो वो हो जाएगा n माइनस ट्वाइस n माइनस n, and n is greater than 1, that is greater than epsilon, therefore limit x tends to 0 1/x does not exist. Clear? fx x है when it lies between 0 and 1 and minus 2 upon x plus 1 when it is greater than 1, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, fx हमें गिवन है x 0 less than equal to x is less than or equal to 1 and minus 2 upon x plus 1 when x is greater than 1, ये दो वैल्यूज आ गई। इसमें पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, we choose epsilon greater than 0 however small, ठीक है। अब बची हमारे पास डेल्टा प्रूफ, ठीक है। तो डेल्टा भी हम चूज करेंगे, लेट करेंगे डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब इन क्वेश्चन इसको करने के लिए ना हमें एक नंबर, जैसे अब हम लेंगे 1 से लेस के लिए फंक्शन है, 1 से ग्रेटर के लिए है, तो 1 से थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा ज्यादा करेंगे, तो जैसे 1 माइनस एच 1 प्लस एच कहते हैं, तो हम वो ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चूज करेंगे अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, सच दैट जो अल्फा है वो डेल्टा से कम है, मतलब अगर मैंने डेल्टा ओपन इंटरवल इतना रखा है 1 माइनस डेल्टा और ये 1 प्लस डेल्टा है, ये डिस्टेंस डेल्टा है, ठीक है। अब मैंने जो अल्फा नंबर लिया है वो डेल्टा से डिस्टेंस कम है, मतलब वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब उस इंटरवल के अंदर आएगा, तो डेल्टा इज अल्फा इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। और हम और भी कम कर लेते हैं, क्योंकि इसका रेंज 1 है ना, तो हम इसको हाफ ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा जो है आधे से भी कम है, ऐसे ले लेते हैं कि अल्फा इज लेस देन हाफ, ठीक है। अब हम लेते हैं वो टेक 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक हम ले लेंगे x1, ठीक है। x1 हम ले लेते हैं पहले कि लेट x1 पॉइंट ले लेते हैं हम इस साइड से और x2 पॉइंट ले लेते हैं इस साइड से। इस साइड को हम कहेंगे 1 माइनस अल्फा, तो x1 इज 1 माइनस अल्फा और x2 हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, ओके। अब x की लिमिट कहाँ तक है, 1 तक, तो हम x1 माइनस 1 लेते हैं, 1 माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा दैट इज अल्फा, और अल्फा डेल्टा से छोटा है। फिर x2 माइनस 1, x2 है 1 प्लस अल्फा माइनस 1, तो वो भी क्या आ जाएगा अल्फा, अल्फा वो भी डेल्टा से छोटा है, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स जो है वो डेल्टा से कम है। तो डेफिनेशन का आधा पार्ट हमारे पास हो गया ना, x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ये हमने शो कर दिया। अब हम लेंगे fx1 माइनस fx2, ठीक है। fx1 x1 कौन सा पॉइंट था, लेफ्ट वाला, तो उसके टाइम पे ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है, f ऑफ 1 माइनस अल्फा, और दूसरे के टाइम पे हम लिखेंगे f ऑफ 1 प्लस अल्फा, ठीक है, क्योंकि x1 हमने लेफ्ट से लिया और x2 हमने राइट से लिया। अच्छा, लेफ्ट वाला हम यहाँ भरेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, और राइट वाला हम यहाँ भरेंगे, तो -2 अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अपॉन 2 प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसे मॉड हटा दूं तो नई टर्म विल बी लेस। अब अल्फा 2 से हाफ से कम था, अल्फा इज लेस देन हाफ, तो अगर मैं अल्फा की जगह हाफ लिखूंगी, नया आंसर मस्ट बी ग्रेटर, तो दैट दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1 माइनस 1/2, 2 प्लस 1/2, 1/2 ग्रेटर है ना, तो अल्फा हटा के जब मैं 1/2 लिखूंगी तो ये ग्रेटर का साइन आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 प्लस 1/2 5/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 4/5, 10 एलसीएम ले लें, 5 प्लस 8 13/10 दैट इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मतलब ग्रेटर देन एप्सिलॉन,
तो फिर कॉशी क्राइटेरिया से ये चीज ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गई, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपको अगर दो अलग अलग लिमिट्स ब्रेक कर दे जिस पॉइंट पे, तो एक वैल्यू आप उससे कम ले लो। जैसे अगर लिमिट 1 पे है तो 1 माइनस डेल्टा, और एक वैल्यू ले लो 1 और 1 प्लस डेल्टा के बीच में। तो आपने क्या करना होता है इसमें, अगर आपका यहाँ पे हाफ भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं है। 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 1 से कम होना चाहिए। क्लियर? हमें शो करना है यूजिंग डेफिनेशन लिमिट ऑफ x साइन 1/x इज 0। तो इसमें हम fx हमारे पास हो गया x साइन 1/x, a हो गया 0 और l भी हो गया 0। अब हम fx माइनस l करते हैं, तो वो आ जाएगा x साइन 1/x माइनस 0, तो वो आया x साइन 1/x। तो हम मॉड x और साइन 1/x। अब हमें पता है कि साइन का कोई भी एंगल हो उसकी वैल्यू 1 से कम होती है, तो यहां मैं साइन हटा के उसकी जगह 1 लिख दूंगी, तो मॉड x आ जाएगा। इसे मैं लिख सकती हूँ मॉड x माइनस 0, तो ये x माइनस a आ गया ना, तो इस बार कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो हम लेंगे चूज डेल्टा एज एप्सिलॉन, फिर हम लिखेंगे fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। Therefore, limit x tends to 0, fx is equal to L. तो limit x tends to 0, x sin 1/x is 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन है।